Hey guys, a very warm welcome to all of you in the series of Python Tkinter. So guys, as you already know this that in the previous videos we have completed some of the widgets and even the layout and geometry management. So now we are going to moving further with the button in Tkinter. So here you will learn that how you can create the button using Tkinter and what kind of things that you need to remember while creating a button and what you can do else with this button. So very important thing is to know the agenda of button, that why we require button, what is the background function, what is the background thing that happens when you click the button. So guys, it's a very common example that you can take it here. When you visit any kind of a website, either in your phone or either in your system, whenever you visit any website, whenever you put your information for logging in and for registering in into a new site, then you enter some of your details like your username, like your email id, like your phone number, and after these entering these things you always press the button, either it name with sign in, register or submit. So whenever you press the button, it will take you to some new page or it will show you the pop-up message that you are registered successfully. So there is so much sure that there is some function working on behind in a backend that make you do this happen. So today in this video we are going to learning that particular thing by using of this Tkinter thing. Here we are not going to make this button in the website, we are going to make this button in the desktop application, but this is directly a correlation with the website button, and you can take it as example to make it in further future when you wanted to make any kind of website and any kind of button over there. So it's like a basic introduction of the button, that what is the use of the button and what action will be done when you press the button, and what action that you wanted to make to done you can set by yourself. So this is the basic important thing that you need to remember while you create any kind of button. So guys, very important thing यहाँ पे ये थी कि आपको एक बटन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि आप किसी बटन पे क्लिक करते हो तो कुछ आपका एक्शन परफॉर्म होता है बैकग्राउंड में, या तो आपको वो कोई पॉपअप मैसेज शो करेगा या फिर आपको वो किसी न्यू पेज पे लेके जाएगा. सो इट्स ऑब्वियस गाइस कि उसके पीछे कुछ फंक्शंस हैं जो आप बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं. उन फंक्शंस को आप यहाँ खुद ही बना सकते हो, वो हमें ही डिसाइड करना होता है कि आप बटन को प्रेस करोगे तो क्या एक्चुअली होना चाहिए. सो बटन क्रिएट करना गाइस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. जब अभी तक जिस तरीके से हमने एक नॉर्मली बटन को क्रिएट किया था, बाकी विजेट्स को क्रिएट किया था, सिमिलर चीज़ यहाँ पर है. आप सिंटेक्स देख सकते हो, बटन इज इक्वल्स टू बटन रूट टेक्स्ट क्लिक नो FG कमांड बटन डॉट ग्रिड. ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपकी सिमिलर हैं कमांड के अलावा. कमांड एक कीवर्ड है जो कि आपका फंक्शन नेम बताता है. तो यहाँ पे आपका हर विजेट से एक अलग चीज़ ये है कि आप यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करोगे. फंक्शन में आप अपने एक्शन को डिफाइन करोगे जो कि आप चाहते हो कि वो हो जब आप बटन को क्लिक करो. सो यहाँ पे सिमिलर हमने एक फंक्शन बनाया है W नाम का, और फिर हमने इसमें प्रिंट किया है हेलो वर्ल्ड. सो वेन एवर यू प्रेस द बटन इट विल प्रिंट यू हेलो वर्ल्ड इन योर आइडियली प्लेटफॉर्म. सो हमने जो बटन का डेफिनेशन बनाया, जो हमने फंक्शन बनाया, वो हमने कमांड इक्वल्स टू W लिख दिया. मतलब अभी कौन सा फंक्शन वर्क करने वाला है W में. W में क्या है, हेलो वर्ल्ड. सो व्हेनेवर यू प्रेस बटन इट विल प्रिंट यू हेलो वर्ल्ड. बट इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस ध्यान ये रखनी होती है कि आप डेफ यानी कि आप जब भी कोई फंक्शन बनाते हो, कोई बटन बनाने से पहले आप अगर उसको डिक्लेयर करते हो तो ही वो आपका फंक्शन वर्क करेगा. बिकॉज अगर आप पहले ही बटन को बना दे रहे हो, उसके बाद अगर आप अपने फंक्शन को डिफाइन करते हो, सो इट विल शो यू हैवंट डिक्लेयर दिस काइंड ऑफ एनी कीवर्ड ऑफ फंक्शन इन थ्रू आउट योर प्रोग्राम. सो आपको एरर शो करेगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट वेन एवर यू क्रिएट द बटन यू शुड डिक्लेयर, यू शुड मेक योर फंक्शन फर्स्ट बिफोर क्रिएटिंग अ बटन. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमाइंड, दैट यू नीड टू नो वाइल यू क्रिएट अ फंक्शन. सो फंक्शन क्रिएट करने के लिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी हम आगे जब आइडियल इमेज में अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे, जब कोडिंग करेंगे, ये सेम चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे तो हम वहाँ पे वो चीज़ों को देखेंगे. बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट था बटन का, कि बटन का यूसेज क्या है, हम उसे क्यों क्रिएट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है आपका ध्यान रखने के लिए, इसके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. तो अभी जैसे आपने देखा कि जो हमने लिखा है FG कमांड, तो ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं. कमांड तो मस्ट है गाइस, बट इसके अलावा आप यहाँ पे चाहो तो रिलीफ
3D स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं बटन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसके अलावा बोल्ड दे सकते हो। जो ऑप्शंस अब तक हम यूज़ कर सकते थे लाइक जस्टिफाई, वो सारे एट्रीब्यूट्स हम बटन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो सारे ही एट्रीब्यूट्स आपके विजेट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर गाइस, हमने वही ऑप्शंस, वही चीज़ें हमने एंट्री विजेट के लिए भी यूज़ किया था यूज़र से इनपुट को गेट करने के लिए। सिमिलर चीज़ हम यहाँ पे बटन के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर द platform. Now we have landed here guys, so very important thing that you need to know, I have already written here that what is the basic syntax that you need to know, and how can you declare the function in this, and what are the things that you need to remember while you do programming. So इससे पहले मैंने कमेंट कर लिया है फंक्शन, आपको ये बता देगा कि अभी आप जो कोड लिखोगे फंक्शन का कोड होगा। सिमिलरली हम कुछ यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं कि आपको उससे एक बार में कोड देख के ही क्लियर हो जाए कि ये किस चीज़ का कोड है, किस लिए कोड है, ताकि आपको बाद में डिफ़िकल्टी ना हो। तो हमने लेबल एंट्री कर दिया। नाउ वी विल राइट हियर बटन एंड देन एंटर। नाउ वी विल राइट द कोड दैट मेक्स बटन हियर। उससे पहले हमें फंक्शन बनाना है, तो हमें फंक्शन का कीवर्ड होता है डेफ, देन फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, एंटर। अभी आपका जहाँ कर्सर आ रहा है हमें वहीं से अपनी कोडिंग शुरू करनी है। अगर आप वहाँ से शुरू नहीं करते हो कोडिंग, अगर आप उसको बैक करते हो, अगर आप उसको और आगे कर देते हो, तो आपको इंडेंटेशन एरर शो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। सो अभी हम पहले अपना टेक्स्ट डाल देते हैं जो हम चाहते हैं प्रिंट हो जब हम उसको बटन को प्रेस करें। सो इतना हमारा हो गया है। अभी हमें क्या करना है, मैं आपको वो एरर दिखाऊंगी जो एरर एक्चुअली आता है जब आप करते हो रन। अभी एरर नहीं आएगा बिकॉज वो उस अलाइनमेंट में नहीं है, यहाँ पे कोई इंडेंटेशन की कोई बात है ही नहीं। सो इट विल नॉट शो यू योर एरर, बट जब हम उस प्रिंट को एंटर करके नीचे लिखेंगे देन इट विल शो यू अ लिटिल बिट एरर दैट एक्सपेक्टेड एन इंडेंट इन अ लाइन नंबर 11। इट विल शो यू एरर लाइक दिस, बिकॉज आपके लाइन नंबर 11 या फिर लाइन नंबर 12 में ही आपके एरर होंगे, गलतियाँ होंगी। सो वो वहाँ पे आपको एरर शो करेगा फॉर श्योर। सो इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका इंडेंटेशन होना था वहाँ पे आप इंडेंटेशन यानी कि स्पेस देंगे। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द इंडेंटेशन एरर कि एक्चुअली किस सिचुएशन में इंडेंटेशन एरर आता है, सो देयर इज़ अ वीडियो इन द आई बटन, जस्ट गो एंड क्लिक द वीडियो एंड वॉच द मीनिंग ऑफ द इंडेंटेशन एरर एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। सो इंडेंटेशन का बेसिकली मतलब यही होता है गाइस कि जब भी आप डेफ के आगे आते हो, एंटर की प्रेस करते हो, आपको जहाँ पे कर्सर लेके आता है यू हैव टू स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम दैट कर्सर ओनली, एल्स इट विल शो यू अ एरर ऑफ एक्सपेक्टेड एन इंडेंट। नाउ we'll just run this program again so that we can see that our result of getting an error in the video. So let's see this error at once so that you can understand the meaning and how to get out of this particular code. Okay, so it will not show you error this time because we haven't got that position to get the error. So now we will cut this, we will erase it out, we'll run it again to see if we get error now. You can see guys the widgets, the two widgets that we have used that are working very well, that is looking too good. Now we just do one thing, we just make this happen run, make this program run so to see the error of indentation. Now we will press this up, now we will run again, and definitely we are going to get error when you run this and have. So we are running it again and we can see expected an indent block after function indentation on line number 11. आपका लाइन नंबर 11 आपका डेफ हमने पी लिखा है, हमारा फंक्शन जनरेशन वहीं हुआ है एग्जैक्टली, बट यहाँ पे उसको स्पेस चाहिए था। दे आर एक्सपेक्टिंग इंडेंट, वो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि यहाँ पे आप स्पेस दोगे, बट आपने एक्सपेक्टेशन तोड़ी है, आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू क्रिएट द बटन। सो अभी बटन हमें बनाने के लिए हम डायरेक्टली बटन का कोड लिखेंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड्स में। सो बटन देन रूट कॉमा फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन 21 बोल्ड।
सो गाइस जैसे आप देख रहे हो कि जैसे हमने उस प्रिंट को जब हमने वापस अपनी जगह पे कर दिया, जब उसको रन करेंगे सो वी विल नॉट गेट एनी एरर, बिकॉज हमें जो चीज़ों को जहाँ पर डिक्लेयर करना चाहिए था हमने वहीं पे किया, सो वी विल नॉट गेट एनी एरर. नाउ ये फॉन्ट वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल पुट द टेक्स्ट दैट व्हाट टेक्स्ट वी वांटेड टू display on the button. So we wanted to that click me. Now parent quotes. Then we can put here BG. BG is equal to 21. That's a border size. Then comma. Yeah. Now then we will come again for the command. Now we can give the BG color also as well as FG color, that is foreground color for the text. After that we will add the command. There you have to mention the function name, that is p. अभी हम function name में p लिखेंगे. So command equals to p. हमने p यहाँ लिखा है, so हम p ही यहाँ पे mention करेंगे. p then parenthesis, then we will can put here relief. So अभी हम relief put करेंगे यहाँ पे relief, बट अभी छोड़ देते हैं इसको, हम बाद में पुट कर लेंगे. पहले फिलहाल अभी हम इसको ऐसे ही रन करके देखेंगे. बट फर्स्टली वी हैव टू एंटर द ग्रिड. सो ग्रिड का हमें एक बहुत बेसिक लॉजिक है गाइस कि पहले जो हमने बनाया था एंट्री विजुअल, उसमें हमारा रो 0 कॉलम 2 पैड x था, रो 0 था. अभी हम रो चेंज करेंगे ताकि, क्योंकि हमारे पास स्क्रीन साइज ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हमारा रो 1 हो जाएगा, कॉलम हमारा 2 ही रहेगा, यानी कि वो एंट्री विजिट के नीचे ही आएगा. यहाँ हम पैडी और पैड एक्स इससे डिफाइन कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो ये विजिट है ये बटन विजिट है, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए. नाउ वी कैन रन दिस टू सी द फंक्शन of to see the output of this particular function and even the code of the button. So now it's a basic thing to know the usage of these attributes that we have used here. Now we will running it and see the output. You can see here it is showing me as error in colum. Okay, so by mistake I have made a mistake here. कॉलम की जगह COLUM ही है, यहाँ पे N नहीं है. सो दैट्स वाई इट इज शोइंग मी एन एरर. सो गाइस सही चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअली करना क्या है. नाउ इट विल नॉट गिव यू एनी एरर, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो वी विल कैंसिल इट आउट, वी विल रन दिस अगेन. सो नाउ if we run this again then you can see the output in a very clear way manner. So हमारे widgets तीनों हैं यहाँ पे. अभी हम क्लिक भी को हमने क्लिक किया. Now we can leave this and you can see we are getting our output as a hello how are you. So अभी हमारा आउटपुट मिल गया है. रैंडमली हमने बटन को प्रेस किया है, इतने सारे हेलो हाउ आर यू हमारे पास आ गए, यानी कि हमारा जो बटन का फंक्शन है वो करेक्टली वर्क कर रहा है. इट मीन्स दैट गाइस कि हमारा जो बटन है, जो फंक्शन है बैकग्राउंड में, वो करेक्टली वर्क कर रहा है. अभी जो हमने बटन बनाया है गाइस वो हमारा एक शेल में ही आपको दिख रहा है आउटपुट, बट वी विल मेक new button with new function that will show you the pop-up message when you click on the button. So we will see this kind of program in the future coming video, but for now, for the basic introduction of how to create a button in the Tkinter Python, so this is enough for today guys. If you are clear with your doubts then please let me know, and if not then also please let me know, then I can improve and I can present it to you in the next time. So बहुत बेसिक चीज़ थी गाइस कि बटन कैसे क्रिएट करना है. आप लुक वाइज देख सकते हो कि जो विजेट का साइज़ है, जो स्टाइल आया है, दैट्स सो गुड. सारे ही विजेट्स में आपको प्रॉपर अलाइनमेंट मिल रहा है, सब में स्पेस है, सब एक इंडिविजुअली शो हो रहे हैं. सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे. सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल लर्न सम न्यू थिंग्स. So bye guys, take care and keep watching, keep coding. Thank you so much guys.